So today we are going to take the unit 3 of Yes, sir. travel agency and tour operations, and this unit is about tour packaging. And in this we will be discussing a travel itinerary. Travel itinerary is basically a schedule of events. When we talk about a travel itinerary, it is a schedule of events related to planned travel, including the destination to be visited at specified time and means of transportation to move between those destinations. Yes, sir. Actually, when we are planning a tour, isn't it? Whether, suppose we will talk from the perspective of a tourist or from the perspective of a tour operator. Whenever a tour is planned, there is in mind that for how many days we are going, depending upon the availability of our time. Suppose if there are vacations and we want to spend those vacations in travel, and then we decide that let's go for 10 days, suppose. And then we are looking for some place where we want to go, isn't it? Or some places where we want to go. Sir. And this sort of meeting takes place between the tour operator, I mean between the travel agent or and the prospective tourist, where the travel agent identifies the need of the tourist, that for how many days he is going and how many people are going, suppose whether it is a family or group of friends. And accordingly, the travel agent suggests a tour package for that tourist. And that tour package includes a proper itinerary. Itinerary is just as you have got a date sheet for examinations or a timetable for your classwork, isn't it? And then you Yes, sir. know that on this date at this time we have this class with this faculty member. So similarly, when we talk about a travel itinerary, it includes the details of the tour. That means on which day which places are to be visited, which time which place is to be visited, and for how much duration we have to spend at a particular place. And in that travel itinerary also, there is a clear mention of the places where a person is going to stay. Suppose there is a detail of the hotel along with the name which hotel is to be stayed. So all the details are being included in an itinerary. And this itinerary is actually a very significant component of a tour package, right? Yes, sir. And this itinerary is well planned and formulated by the tourism professionals, because preparation of an itinerary is a very skilled task, because an itinerary is a day to day plan of a journey जो इसमें अंडरटेक करना है टूर, उसका पूरा डे टू डे प्लान जो है वो आइटिनरी में मेंशन्ड होता है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट जो है, सपोज जो जर्नी है उसको पूरी तरह से डिटेल में मेंशन्ड होता है आइटिनरी में.
आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। कोई सपोज आप अगर सर्च करोगे आइटिनरी 6 नाइट और 7 डे आइटिनरी फॉर कश्मीर पैकेज टूर में, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो 7 दिन पूरी तरह से वो एक टूर ऑपरेटर ने आइटिनरी डेवलप की होगी। तो उसमें डे वाइज लिखा होगा कि पहले दिन कहाँ लिया जाएगा टूरिस्ट को। सपोज उसमें होगा डे 1 जब टूरिस्ट आ जाएगा श्रीनगर, तो आइटिनरी में अराइवल एट द एयरपोर्ट होगी ना पहले टूरिस्ट की। जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स हैं डे 1 पे होगा अराइवल एट द एयरपोर्ट, तो वहाँ पे बाज़ाब्ता उनको रिसीव किया जाएगा। सो वो चीज़ वहाँ पे लिखा होगा। फिर वहाँ पे ऑन अराइवल दे विल बी टेकन टू द होटल। सपोज दे विल बी टेकन टू होटल ताज विवेंटा, तो बाज़ाब्ता वहाँ पे होटल ताज विवेंटा लिखा होगा। उसके बाद कौन सा मोड ऑफ व्हीकल यूज़ किया जाएगा। दे विल बी टेकन टू होटल ताज विवेंटा by Volvo coach or suppose by Innova vehicles। तो उसके बाद वहाँ पे on arrival in the hotel guests will be given a welcome with a traditional Kashmiri beverage, suppose कहवा या कुछ। तो after that there will be some sort of guests will refresh themselves, and after refreshing, suppose they will take a shower and they will take some sort of rest, and after that they will have lunch within the hotel. Post lunch they will be taken to they will have a स्ट्रॉल अराउंड द होटल, क्योंकि वो बड़ा होटल है विवेंटा और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी। डल लेक की व्यू है, वहाँ से दूसरे साइड से बहुत ही मतलब ज़बरदस्त की व्यू है। तो लंच के बाद थोड़ा स्ट्रॉल करेंगे गेस्ट्स होटल के कंपाउंड में, थोड़ा सा वॉक करेंगे और एंजॉय करेंगे वो प्रिस्टीन ब्यूटी। तो उसके बाद मे बी दे विल बी टेकन टू द, क्योंकि उसके नज़दीक ही है बॉटनिकल गार्डन, सो गेस्ट्स विल बी टेकन, टूरिस्ट्स विल बी टेकन टू बॉटनिकल गार्डन। और वहाँ पे ये भी मेंशन होगा कि एट बॉटनिकल गार्डन दे विल हैव ब्रीफ विजिट ऑफ फॉर अबाउट से 1 आवर, 1 घंटा या पौना घंटा जितना इनके पास टाइम है। तो 1 घंटा वो उस गार्डन का लुत्फ़ उठाएंगे। एंड बाय इवनिंग द गेस्ट्स विल बी बैक इन द होटल फॉर डिनर, ठीक है। तो आफ्टर डिनर द गेस्ट्स विल गो टू देयर रूम्स फॉर स्लीप। तो ये हो गया डे 1 का पूरी मतलब इवेंट्स हमने देखे डे 1 के, कैसे हमने मेंशन किए। तो ऐसे चीज़ें जो हैं इसी तरीके से फिर डे 2 पे ब्रेकफास्ट का तो नॉर्मली होटल में ही होता है। तो गेस्ट्स विल असेंबल इन द, सपोज अगर वहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट्स होते हैं 5 स्टार्स में, तो सपोज वहाँ पे जो रेस्टोरेंट इन्होंने डिसाइड किया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट है, सो गेस्ट्स विल असेंबल एट द रेस्टोरेंट ABC, क्या है उसका नाम होटल का रेस्टोरेंट का, फॉर ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम से 7:30 और 8, isn't it? Then after breakfast vehicle will be ready, suppose Volvo coach or Innova vehicles will be ready for the tourists to be taken to say गुलमर्ग। डे 2 इन्होंने गुलमर्ग का रखा है। तो फिर गुलमर्ग में जो एक्टिविटीज़ हैं दिन में जो उनको उसमें इंक्लूडेड हैं,
उसका प्रॉपर मेंशन होगा आइटिनरी में। गुलमर्ग में क्या क्या करना है, सपोज गुलमर्ग में ऑन रीचिंग गुलमर्ग द गेस्ट्स विल बी टेकन टू JKTDC कैफेटेरिया फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी और टी, जो भी है, isn't it? तो वो मेंशन होगा। आफ्टर कॉफ़ी और आफ्टर टी द गेस्ट्स विल बी टेकन फॉर ए गंडोला राइड। तो देन आफ्टर अगर गंडोला राइड सपोज इंक्लूड करती है लोअर टर्मिनल पॉइंट, वो मेंशन्ड होगा। आफ्टर टी और कॉफ़ी द गेस्ट्स विल बी टेकन फॉर ए गंडोला राइड टू लोअर टर्मिनल पॉइंट, दैट इज़ खिलनमर्ग। अगर अपर टर्मिनल पॉइंट आपको उनको मेंशन है, मतलब उनको करवाना है अवेल, तो उस पर लिखा होगा अप टू अपर टर्मिनल पॉइंट, दैट इज़ अफरवट। तो उसकी जो टिकट्स हैं वो डिपेंड करता है कि गेस्ट ने कौन सी पैकेज ली है, क्योंकि अफरवट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है लोअर टर्मिनल पॉइंट से। तो वो डिपेंड करता है कि गेस्ट ने कौन सी पैकेज में उस वक्त जो पैकेज कॉस्ट के हिसाब से वो आइटिनरी में वो चीज़ें इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद लंच उनको कहाँ पे करना है, सपोज अगर उनका लंच का अरेंजमेंट है खैबर हिमालयाज़ होटल में, तो आफ्टर गंडोला राइड द गेस्ट्स विल बी टेकन टू खैबर हिमालया होटल फॉर लंच। ठीक है, तो फिर पोस्ट लंच द गेस्ट्स विल बी टेकन फॉर ए ब्रीफ हॉर्स राइड। सपोज आप घोड़सवारी के लिए गेस्ट्स को आपने रखा है कुछ प्रोग्राम, तो लंच के बाद थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग उनको करवाएंगे, तो वो चीज़ इंक्लूडेड होगा। तो अगर उसके अलावा और कोई एक्टिविटी आपने रखी है तो वो भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टूरिस्ट्स ऐसे होते हैं जो गोल्फ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो गुलमर्ग में एक बहुत ही अच्छा हाई अल्टीट्यूड गोल्फ कोर्स है, तो थोड़ा सा गोल्फिंग का मौका भी उनको दिया जा सकता है अगर उस टाइप का टूरिस्ट है जिसने वो इंटरेस्ट एक्सप्रेस की होती है पैकेज खरीदते समय, तो उसमें वो चीज़ मेंशन करते हैं। फिर तो ये चीज़ें जो है ये सारा कुछ एक टूर आइटिनरी में मेंशन किया जाता है। तो इसीलिए जो आइटिनरी है ये टूर पैकेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसको डिज़ाइन किया जाता है उसी हिसाब से जिस हिसाब से टूरिस्ट ने पैकेज ख़रीदी होती हैं, क्योंकि डिफरेंट पैकेजेस में मुख्तलिफ इंक्लूशंस होते हैं, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द पैकेज। तो उसी हिसाब से वो चीज़ें, जैसे मैंने भी बोला गोल्फिंग, किसी पैकेज में गोल्फ इंक्लूड होता है, किसी पैकेज में गंडोला राइड्स इंक्लूड होते हैं, हॉर्स राइड्स इंक्लूड होते हैं, या किसी पैकेज में 5 स्टार लंच इंक्लूड होते हैं, किसी पैकेज में और भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर डिटेल में आइटिनरी में मेंशन किए जाते हैं। तो आइटिनरी जो है, या किसी में सपोज कोई और एडवेंचर एक्टिविटी है, जैसे गुलमर्ग में विंटर्स में स्कीइंग होती है, स्नो स्कीइंग इजंट इट, या आइस हॉकी होता है, तो वो भी आइटिनरी में फिर मेंशन होता है। सपोज एट दिस टाइम दे विल बी गिवन द चांस ऑफ आइस हॉकी, और दे विल बी गिवन द चांस ऑफ प्लेइंग दिस, जो ना ये और कुछ स्पोर्ट्स होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, या किसी जगह सपोज राफ्टिंग का मौका होता है, जैसे पहलगाम में सपोज वाइट वाटर राफ्टिंग या कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसको भी मेंशन किया जाता है। या किसी जगह साइकिलिंग के लिए फिजिबल होती है कोई जगह, तो वो उसमें लिखा जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आइटिनरी, बहुत ही मतलब आइटिनरी देख के ऐसे लगना चाहिए टूरिस्ट को, बहुत अट्रैक्ट होना चाहिए वो, क्योंकि आइटिनरी उसको जो उसका कमिंग जो टाइम होता है ट्रैवल का, उसकी पूरी पिक्चर उसको सामने रखती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, because it is a complete day-to-day plan of his coming journey, because it includes all the activities and destinations that the tourist will engage or visit during his or her journey. तो ये जो आइटिनरी है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द क्लाइंट प्रोफाइल। जैसे जो क्लाइंट होता है, जो टूरिस्ट होता है, उसका जो प्रोफाइल होता है उसके साथ आइटिनरी मैच होनी चाहिए, क्योंकि जो एक टूरिस्ट बाज़ाब्ता उसका IAO स्टडीज होती हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑफ द टूरिस्ट जो है, उसके साथ उस आइटिनरी को मैच किया जाता है। As I told you that there are some tourists who are interested in adventure sports, and that time the travel agent or the tour operator is very much careful so as to include such aspects within the package, so that the tourist will be satisfied with some adventure related activities. Or similarly, as I told you that there are some tourists who are very much interested in shopping and some other aspects, तो उसमें वैसी आइटिनरी में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। जैसे अगर यहाँ से सपोज़ कोई टूरिस्ट जाएगा बाहर, सपोज़ फ्रॉम कश्मीर देयर a group of tourists will go to Dubai, isn't it? तो नेचुरली जो यहाँ से दुबई जाएगा तो उसके माइंड में होगा कुछ शॉपिंग का, क्योंकि दुबई में बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो उसके माइंड में मत होगा एडवेंचर एक्टिविटी, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी राफ्टिंग के लिए तो और कोई जगह है, लेकिन जो यहाँ से दुबई जाएगा तो उसको माइंड में होगा शॉपिंग रिलेटेड, इजंट इट? तो उसको जो आइटिनरी डेवलप करेगा टूर ऑपरेटर या जो ट्रैवल एजेंट उसकी आइटिनरी पे काम करेगा, तो वो उसमें ज़रूरी मॉल्स इंक्लूड कर लेगा। तो अगर वो सपोज़ 4 दिन या 1 हफ़्ता जा रहा है वहाँ पे, तो उसको वो जो वहाँ के बड़े बड़े मॉल्स हैं, सपोज़ दुबई मॉल वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो मॉल रखेगा उसमें, क्योंकि एक एक मॉल को एक एक दिन लगेगा देखने में, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं शॉपिंग मॉल्स। तो उस तरीके से वो उसकी इंटरेस्ट के मुवाफिक उसकी पैकेज को, उसकी आइटिनरी को डेवलप कर लेगा। तो सिमिलरली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम अमेरिका टू से कश्मीर, और आई मीन टू से टू इंडिया, the tour operator accordingly takes into consideration their interests, their attitudes, their opinions, and they develop the itinerary accordingly. Okay? जैसे कि Yes, sir. जो अमेरिका से यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट या यूरोप से आते हैं, तो उनको काफ़ी अट्रैक्शन रहती है हिमालयाज़ के साथ, क्योंकि हिमालयाज़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो एशिया में है। तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब भी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। तो ऐसी ऐसी जो माउंटेन पीक्स हैं, तो उसमें ऐसे टूरिस्ट्स के लिए वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, उसमें ट्रैकिंग्स, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जो वहाँ से यहाँ आते हैं वो नॉर्मली शॉपिंग मॉल्स देखने के लिए इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे ज़्यादा डेवलप्ड है इंडिया से। सो दे विल नॉट कम हियर टू सी द शॉपिंग मॉल्स, बट दे विल लाइक टू सी द कंजेस्टेड मार्केट्स ऑफ इंडिया। सपोज चांदनी चौक का वो बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट यूरोप में नहीं पाया जाएगा, तो उनको वो कंजेस्टेड मार्केट उनके लिए एक अट्रैक्शन रहेगी, कि जहाँ पे वो छोटे छोटे
दुकानें हैं और फिर वो हाथों में लेके चीज़ें बेचते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से खाली मॉल कल्चर या डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे हैं, तो वो छोटी छोटी मार्केट्स उनको थोड़ा सा कुछ लगेगा डिफरेंट। तो वाईसी जो आइटिनरीज हैं उसमें कभी इंक्लूड किए जाते हैं ऐसी मार्केट्स भी जो उनको दिखाए जाते हैं टूर के दौरान। तो ये होता है आइटिनरी का काम, जो बहुत ही प्रोफेशनली डिज़ाइन की जाती है। तो फिर आइटिनरी के जो टाइप्स होते हैं, इसमें एक होती है जो जनरल आइटिनरी होती है, और दूसरी आइटिनरी होती है जिसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड आइटिनरी। ए जनरल आइटिनरी एंड अनदर इज ए पर्सनलाइज्ड आइटिनरी। जो जनरल होती है वो डिज़ाइंड होती है एक लार्जर सेगमेंट के लिए, मतलब जो जनरली जो टूरिस्ट की नीड्स होती हैं उसके मुवाफिक होती है, बिकॉज दैट इज़ एम्ड एट एंड मार्केटेड टू ए वाइड वैरायटी ऑफ टूरिस्ट्स एंड taking into consideration a wide range of interest. But when we talk about a personalized itinerary that is specially drawn up for a specific client according to that client's needs and interests, जो पर्सनलाइज्ड आइटिनरी होती है उसमें जो टूरिस्ट्स की नीड्स जो है उसको देख के आइटिनरी को डेवलप किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी गोल्फ की, तो गोल्फ हर कोई नहीं पसंद करता है, या इनफैक्ट हर किसी को गोल्फ खेलना नहीं आता है। तो अगर सपोज हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्सेज हैं। गुलमर्ग की भी मैंने बात की, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाई एल्टीट्यूड गोल्फ कोर्स। उतनी ऊंचाई पे एटलीस्ट एशिया में कोई गोल्फ कोर्स नहीं है। तो एक बहुत ही खूबसूरत गोल्फ कोर्स श्रीनगर में है जिसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स हैं, क्योंकि वो ज़बरवन माउंटेन रेंज के नीचे हैं और वहाँ से डल लेक पे भी उसकी नज़र है। तो और उसका जो ग्रास है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और उसका जो लैंडस्केपिंग है वो भी बहुत ही यूनिक है। तो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी लगभग अगर हम शुमार करेंगे वर्ल्ड के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में एक है। तो अब जो टूरिस्ट गोल्फ में इंटरेस्टेड होगा तो उसके लिए अगर वो कश्मीर आएगा तो उसको आप गोल्फ रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में तो गोल्फ उसको ज़रूरी खिलवाना है। He should play because he will see the beauty of the and enjoy the beauty of playing golf in that course. तो वो चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। वो तब हो सकता है जब बाज़ाबिता जो एक ट्रैवल कंसल्टेंट है वो बाज़ाबिता टूरिस्ट की नीड्स को आइडेंटिफाई करे, उसकी इंटरेस्ट्स, उसके एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को एनालाइज करे, और उसके बाद उसके लिए एक टेलर मेड टूर पैकेज और एक पर्सनलाइज्ड आइटिनरी डेवलप करे, जिसमें बाज़ाबिता उसी के लिए वो चीज़ बनाया जाए, वो पैकेज डेवलप की जाए। तो उसे कहते हैं पर्सनलाइज्ड आइटिनरी। ये ऐसी बात है कि सपोज़ कोई रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में खाना मेन्यू बन के होता है, सपोज़ मेन्यू में ये चीज़ें हैं, लेकिन कोई ऐसा गेस्ट होता है जो जिसका खाना थोड़ा डिफरेंट होता है, जो चाहता है एक पर्टिकुलर टाइप का डिश जो मेन्यू में भी नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट को वो ऑर्डर प्लेस करता है
और फिर वो कुक उसके लिए वो चीज़ तैयार करता है। दैट इज़ कॉल्ड टेलर मेड पैकेज। तो उसी को कहते हैं यहाँ पे पर्सनलाइज्ड आइटिनरी। तो पर्सनलाइज्ड आइटिनरी में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स को या एक पर्टिकुलर टूरिस्ट की इंटरेस्ट के लिए के हिसाब से हो। राइट? जी सर। तो उसके बाद जो हम आइटिनरी की बात करते हैं, आइटिनरी में फिर कॉस्टिंग आता है, क्योंकि ये हम प्रिपरेशन ऑफ आइटिनरी करते थे अभी, और प्रिपरेशन ऑफ आइटिनरी के हिसाब से ही फिर कॉस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पर्सनलाइज्ड टूर आइटिनरी डेवलप कर रहे हैं और एक टूरिस्ट चाहता है कि मुझे ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए आइटिनरी में, पैकेज में, तो उसी के हिसाब से उसका जो आइटिनरी का जो कॉस्ट है वो बनेगा। सपोज आपका टूरिस्ट चाहता है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलना, तो वहाँ पे चार्जेस लगते हैं। क्योंकि अगर आप टूरिस्ट को वहाँ पे लेंगे, अगर वो फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स के लिए तो चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसको वहाँ पे एक फ़ी भरना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन फ़ी। क्या कहते हैं? ग्रीन फ़ी। तो कम से कम अगर वो 8 ये 9 होल्स खेलेगा, क्योंकि इसमें गेम में होते हैं 9 होल्स, 18 होल्स, तो लगभग 2 घंटे एटलीस्ट लगते हैं 9 होल्स को खेलने के लिए। तो अगर वो 9 होल्स की गेम खेलेगा या अगर 18 होल्स, तो उसको लगभग आधा दिन कंज्यूम करेगा। तो लगभग 2500 तक उसको ग्रीन फी वहाँ पे चढ़ेगा कम से कम। फिर उसके अलावा गोल्फिंग के लिए उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको उसमें गोल्फ बॉल्स की ज़रूरत है, उसको क्या कहते हैं इसको, जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं जिससे गोल्फ खेलते हैं उनकी ज़रूरत है। तो वो इक्विपमेंट्स जो है वो हायर करने हैं, क्योंकि उसको मत अपना सामान साथ होगा वहाँ से, उसको अपना गोल्फ सेट तो साथ नहीं होगा, तो उसको वो वहाँ से लेना है। तो इक्विपमेंट्स की अलग रेंट है वहाँ पे। तो अगर वो गोल्फ सेट हायर करेगा रेंट पे, तो कम से कम 1000 रुपया एटलीस्ट उसको उसका भी रेंट चढ़ेगा। तो फिर ये ज़रूरी है गोल्फ में यूज़ करना होता है कैडी। कैडी होता है जो वो इक्विपमेंट्स कैरी करता है, और जब वो बॉल हिट करता है गोल्फर, फिर वो बॉल बहुत दूर जाती है, तो फिर उस बॉल को सर्च या वो लाता है वहाँ से कैडी। तो हर किसी गोल्फ कोर्स के साथ कैडीज़ रहते हैं, और वो कैडी भी हायर करना पड़ता है उस वक्त जब गोल्फ खेलना है। तो उस कैडी को भी पैसा देना पड़ता है, कम से कम 250 रुपया या जो भी होगा वो उन्होंने रखा होता है गोल्फ कोर्स में। तो 250-500 जितना होगा तो वो कैडी को देना है। तो दैट मीन्स अगर आइटिनरी में गोल्फ इंक्लूड किया गया तो ये कॉस्ट उसमें चढ़ेगा ना फिर। और टूर ऑपरेटर को पता होता है ये चीज़ें कि ग्रीन फी क्या है, कैडी चार्जेस क्या है, इक्विपमेंट रेंट क्या है, तो वो ये चीज़ें टोटल करके ये इसमें इंक्लूड कर लेगा। तो पैकेज का जो कॉस्ट है वो अकॉर्डिंगली बनता है, जिस हिसाब से आइटिनरी में उसको जो इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसी हिसाब से फिर कॉस्टिंग होती है। ओके। तो वैसी अगर वो सपोज गोल्फ नहीं खेलेगा तो नेचुरली ये कॉस्ट चढ़ेगा ही नहीं, तो पैकेज का जो कॉस्ट है वो कम रहेगा। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ इसी तरीके से सपोज कोई गुलमर्ग में गंडोला राइड नहीं करेगा, तो अपर टर्मिनल पॉइंट पे 1000 से ज़्यादा लगभग टिकट है। सो
अगर कोई अफरवट नहीं जाएगा या गंडोला राइड ही नहीं करेगा तो उसका वो कीमत मत चढ़ेगा, वो टिकट का, वो राइड का पैसा उसको चढ़ेगा ही नहीं। लेकिन जो करेगा राइड तो नेचुरली वो कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये चीज़ें जो है इसी से कॉस्टिंग होती है टूरिस्ट की। तो ये कॉस्टिंग भी देखनी पड़ती है। उसी हिसाब से टूरिस्ट का बजट आपको देखना है पहले कि टूरिस्ट किस बजट पे ट्रैवल करना चाहता है, क्योंकि अगर टूरिस्ट की बजट ही कम है तो डेफिनेटली आपको आइटिनरी में ऐसी चीज़ें फिर रखनी ही नहीं है जिससे पैकेज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। So that is why a tourism professional should be well acquainted with these things। उसको पूरी पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तभी वो ये चीज़ें, तभी वो एक अच्छी आइटिनरी बना सकेगा। अगर किसी टूरिस्ट को किसी टूरिज़म प्रोफेशनल को ये पता ही नहीं है कि गोल्फ कोर्सेज में ग्रीन फीस होते हैं या कौन कौन सा गोल्फ कोर्स यहाँ पर है या गंडोला कहाँ जाता है, अपर टर्मिनल पॉइंट क्या है, लोअर टर्मिनल पॉइंट क्या है, या जो श्रीनगर में ये छोटा सा गंडोला है जो मखदूम साहब श्राइन तक जाता है वो क्या है, तो तब वो कहाँ बना सकता है अच्छी आइटिनरी। तो एक अच्छी आइटिनरी बनाने के लिए एक टूरिज़म प्रोफेशनल को ये सारी नॉलेज पहले होनी चाहिए खुद को, और ये रेट्स भी पता होनी चाहिए। सपोज़ यहाँ पे श्रीनगर में गंडोला है, वो लगभग 100 रुपया चार्ज करता है वन वे। तो अगर मखदूम साहब श्राइन तक जाएंगे तो नेचुरली ये भी पता होनी चाहिए। सपोज़ अगर किसी को वहाँ पे श्रीनगर में गंडोला राइड करनी है तो उसका ये कॉस्ट होगा और उससे वो मखदूम साहब की श्राइन देख सकेगा। अभी प्लान्स हैं गवर्नमेंट के कि उसको हारी पर्वत फोर्ट तक लिया जाएगा दूसरे फेज़ में। तो नेचुरली फिर हारी पर्वत फोर्ट भी जा सकते हैं गंडोला के थ्रू। थोड़ा सा उसका और अट्रैक्शन बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि एक तो मखदूम साहब की श्राइन इंक्लूड करेगा और उसके बाद उसका अपर टर्मिनल पॉइंट बनेगा हारी पर्वत फोर्ट, इज़न्ट इट? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए एक टूरिज़म प्रोफेशनल को, तभी वो एक अच्छी आइटिनरी फ्रेम कर सकेगा और ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर पाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर स्पोर्ट्स हैं श्रीनगर में भी, जैसे कि स्कोप है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की कुछ। तो कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो देखना है, और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे वो पता होनी चाहिए टूर ऑपरेटर को, टूरिज़म प्रोफेशनल को। क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक एडवेंचर क्लब है, उनके पास सामान रहता है एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड। शायद मानसबल मैंने आपको एक बार लिया था, वहाँ आपने देखा ना वो सामान, वो बंद पड़ा था उस कमरे में। आप आए थे उस दिन जब वो मानसबल में वो वाटर स्पोर्ट्स का सामान मैंने दिखाया था? आपका ग्रुप आया था, मुझे लगता है आपके ग्रुप को लिया था शायद। हाँ, नो सर। ओके। तो वहाँ पर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने वो राफ्ट्स रखे हैं और भी वो कुछ सामान रखे हैं जो एडवेंचर टूरिज़म में काम आते हैं वाटर स्पोर्ट्स में। वाटर स्पोर्ट्स में अच्छा खासा सामान है, वहाँ पे यूज़ नहीं होता है क्योंकि उनको वो जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोच की कमी है, वहाँ पे कोच अवेलेबल नहीं है क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है इसमें, तो इसलिए वो ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ सामान है वहाँ पे। तो जो टूरिज़म प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके पास लाइफ गार्ड हैं अवेलेबल, कोच हैं ट्रेंड, तो दे कैन हायर द इक्विपमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को थोड़ा सा उनका रेंट भी ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, थोड़ा सा वो उनको पेमेंट करके वो सामान यूज़ कर सकते हैं और टूरिस्ट्स को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं।
सो वो है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे वैल्यू एडिशन होगा सर्विसेज में, उसे कहते हैं वैल्यू एडिड सर्विसेज। जो जी ये सर्विसेज हैं मेन सर्विसेज, उसमें आप कुछ और ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप अपनी पैकेज का वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। यू कैन मेक योर this destination, this package more attractive by that, by including certain things and जी सर। increasing the value of your package. तो फिर उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम बात करते हैं कुछ सपोज वी टॉक अबाउट accommodation, isn't जी it? सर। तो एकोमोडेशन में आप सपोज आपने होटल यूज़ किया, आप होटल के अलावा और भी कुछ टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली बार वो मुझे दिखाया था वो प्रेजेंटेशन में, isn't it? हॉबिट हाउस। जी सर। तो जी सर। या हम ट्री हाउस की बात करेंगे। अगर सपोज किसी डेस्टिनेशन पे ऐसी अल्टरनेटिव एकोमोडेशन पॉसिबल है, या टेंटेड एकोमोडेशन सोनमर्ग में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप सोनमर्ग तो आप गए होंगे, कभी गए हैं? जी सर गए। ओके, तो सोनमर्ग में बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे एक जगह है थाजवास। थाजवास वो पूरे फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, थाजवास ग्लेशियर है वहाँ पे। तो वहाँ पे हर किसी टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है वो बैंड है, क्योंकि दैट इज़ द एंटायर फॉरेस्ट एरिया, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देता है किसी को होटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो लेकिन वहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल है, और उस खूबसूरत माहौल में एक टूरिस्ट स्टे करना चाहेगा, टूरिस्ट विल लाइक टू स्टे देयर। तो उसके लिए सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की वसादत से वहाँ पे काम हुआ, जहाँ पे बनाया गया टेंटेड एकोमोडेशन। उसके लिए बाज़ाब्ता परमिशन देती है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी एनओसी देते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। वो खाली वहाँ पे सीज़न में, जब 2-3-4 महीने पूरा पीक सीज़न रहता है, उस वक्त वो कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है, कोई टूर ऑपरेटर, वो वहाँ पे एक स्पेस लेता है और वहाँ पे वो अपने टेंट्स लगाता है। तो वो टेंट्स बड़े खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग टेंट्स हैं। उनमें बाज़ाब्ता बेड्स डनलोप्स रहते हैं सोने के लिए। अंदर से होटल की कमरे की तरह बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार स्टे होती है रात को उन टेंट्स में, और अच्छा खासा वो चार्ज भी करते हैं। दे आर चार्जिंग मोर देन 1000 पर नाइट फॉर दैट टेंट। लेकिन फैसिलिटीज़ सारे हैं वहाँ पे। एक तो टेंट में बहुत ही खूबसूरत बेडिंग है, और टेंट्स में ही वहाँ पे वॉशरूम्स हैं। तो उन्होंने वो टेम्पररी वॉशरूम्स, टॉयलेट्स टेंट्स में ही रखे हैं। मतलब वो अलग से स्पेशली डिज़ाइन टेंट्स हैं फॉर वाटर क्लोजेट्स में। बाज़ाब्ता पानी का अरेंजमेंट भी है, सब कुछ है। तो गेस्ट कंफर्टेबली वहाँ पे स्टे कर सकता है। तो एक आइटिनरी में अगर आपके पास टूरिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, और आप उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ऐसी अल्टरनेट एकोमोडेशन से। सपोज उसको सोनमर्ग में आपने नाइट स्टे करवाया, और नाइट स्टे करवाया इसी टेंटेड एकोमोडेशन में। इसी तरह किसी जगह भी, तो यहाँ पे वो ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मे भी कुछ सालों में हो जाएगा। जैसे आपने भी वहाँ पे जो वो डुम्बगली है, वहाँ पर भी आपने वो हॉबिट हाउस और ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट की पॉसिबिलिटी है, इजंट इट? तो ऐसी जगहों पे आप उसको सपोज ट्री हाउस एकोमोडेशन देते हैं। तो उन चीज़ों से क्या होगा, उन चीज़ों से एक टूरिस्ट जो है वो
बहुत ही इंटरेस्टेड फील करेगा, बहुत ही अट्रैक्टेड फील करेगा टू अवेल सच टाइप ऑफ फैसिलिटीज, इजंट इट? जी तो सर। ये चीज़ें जो है ये आते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज में. हाँ, इज इट ऑडिबल? Isn't it? जी So सर। now for यस सर। this assignment, now you have to develop an itinerary for a group of tourists who are coming from Europe, and the age group of यूरोप, यस those सर। tourists is 20 to 20 30, isn't it? to And now 30। you have to यस सर। develop a 7-day itinerary for them. So what जी all सर। you will like to include, you are free to do that. ओके Okay. सर। So you will try to develop this itinerary, and then you can show it to me through SlideShare also, or you can send it to me by email also. Isn't जी it? सर। यस सर। Okay. Anything else you would like to ask? सर ये जो सर आप बोल रहे जो आइटिनरी में होता है ऑलरेडी मेंशन करके, तो सर वो हम मतलब वैसे पैकेज बनाते हैं। अब अगर सर कोई टूरिस्ट आएगा फॉर एग्जांपल सर, मतलब वो जो गंडोला एक्टिविटीज है वो उसमें मतलब मेंशन नहीं होगी आइटिनरी, लेकिन जब टूरिस्ट आएगा वो देखेगा तो वो बाद में सोचेगा कि नहीं मैं इसमें भी हिस्सा लूँ, मतलब मैं गंडोला में भी जाना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा तब देखकर, तो सर वो बाद में मेंशन कर सकते हैं उसमें। हाँ, very good. Sometimes this thing happens because once the tourist arrives, and maybe initially you यस had सर। already spoken to the group, you had told them that there is a gondola and there is a ride of gondola, and do you like to have that? तो कभी टूरिस्ट बोलता है पहले नहीं, वी डोंट वांट टू हैव इट, लेकिन फिर जब वो पहुंचता है यस वहाँ सर। पे और वो बाकी टूरिस्ट उसको वो देखता है, वो अवेल करते हुए, वो भी चाहता है फिर उसको अवेल करना. तो अभी करना है, यू यस आर सर। ऑलवेज फ्री टू डू इट, बिकॉज आपका जो गाइड है वो हमेशा उनके साथ रहता है. तो उस वक्त वो यस सर। आपके गाइड को वो रिक्वेस्ट करे कि हमको ये चीज़ हम अवेल करना चाहते हैं, तो वो गाइड जो है वो फैसिलिटेट करेगा उनकी वो राइड, वो वहाँ पे ऑन स्पॉट. अब पहले ये चीज़ होता है कि पहले उनकी टिकट्स आपने ऑलरेडी बुक की होती है और उनको इनकन्वीनियंस कुछ नहीं होगी. लेकिन अब एक चीज़ है कि मे बी वहाँ पे आप क्यू हैं, लाइन में रहना पड़ेगा, लेकिन गाइड रहेगा लाइन में और वो उनकी टिकट ऑब्टेन कर लेगा और उनको उनसे वो पैसे लेगा, क्योंकि वो मत है इंक्लूडेड पैकेज में. तो दे विल पे फॉर पैकेज इट, इंक्लूड नहीं दे है। विल हैव टू पे फॉर इट, लेकिन यू कैन ऑलवेज फैसिलिटेट देम, यू कैन ऑलवेज मेक इट पॉसिबल फॉर देम. तो आपका गाइड जो है वो उनसे वो पैसा लेगा और उनके लिए टिकट ऑब्टेन कर लेगा और उनको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा. या इसी तरीके से कभी और भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, सपोज वाटर स्पोर्ट्स या कुछ, तो यस सर। उसमें ऑन स्पॉट फिर टूरिस्ट इंटरेस्टेड होता है वो अवेल करने में. तो अब कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑन स्पॉट पॉसिबल नहीं होती हैं, जिसके लिए एडवांस बुकिंग करनी ज़रूरी होती है. तो जहाँ पे ऑन स्पॉट पॉसिबिलिटी है वहाँ पे आप उसको वो फैसिलिटी अवेल करने में फैसिलिटेट कर सकते हैं, और जहाँ पे ऑन स्पॉट पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे आप टूरिस्ट को अंडरस्टैंड कर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर वी आर सॉरी दैट एट दिस मोमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू undertake booking for it because it requires booking in advance, and that is why we had requested you earlier that whether you are interested in this or not, so that we would have already made the arrangement in advance. So now we are sorry, we are not able to manage it at this time. तो फिर टूरिस्ट अंडरस्टैंड कर पाएगा उस वक्त, क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने पहले मुझे बोला था ये बात, मैंने ही नहीं माना, और इनके लिए इस मौके पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. राइट? नहीं है। यस सर। तो Yes, sir. that you can do. यस सर। Okay. सर एक्चुअली सर जो सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था सर, उसमें मुझे ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म बैकलॉग आई थी, लेकिन उसके लिए मैंने रिवॉल्यूशन किया था तो वो क्लियर हो गया था रिवॉल्यूशन में, लेकिन सर तब से आज तक मेरा मार्क्स कार्ड नहीं आया. मैंने सर बशीर सर से कई बार बात की थी इस बारे में, उन्हें अपनी डिटेल Okay.